السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور 13 رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 7 اپریل 2020۔ سوالات کو 2 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ زکوٰۃ سے متعلق ہے، دوسرا حصہ عام سوالات ہے۔ تو پہلے حصے پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ میری ایک دکان ہے تو میں دکان پر زکوٰۃ کس طرح نکالوں۔ میں تمام دکان والوں کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی جس چیز کی بھی دکان ہو، سپر مارکیٹ ہو، مال ہو، یا ایک جویلری کی دکان ہو، یا آرٹیفیشل کسی بھی چیز کی دکان ہو، یہ آپ دیکھیں کہ ہماری دکان میں جس دن آپ نے طے کیا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس دن یہ دیکھیں کہ ہماری دکان میں مال کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ کا مال ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ میں جہاں سے مال اٹھاتا ہوں مجھے کتنا قرضہ دینا ہے، واپس کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ 2 لاکھ روپے کا آپ نے مال جو اٹھایا ہے ابھی اس کا پیسہ نہیں دیا ہے، تو 5 لاکھ کا آپ کا مال ہے، ابھی 2 لاکھ روپے آپ کو دینا ہے، تو گویا آپ کے پاس 3 ہی لاکھ کا مال ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ہم سے ایک صاحب 1 لاکھ کا مال لے کر کے گئے ہیں جو واپس آئے گا، جو واپس نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں، جو آئے گا واپس تو اس کو جوڑ لیں۔ تو گویا آپ کی شاپ کا ٹوٹل اسٹاک نکال لے 5 لاکھ، پھر 2 لاکھ روپے آپ کو دینا ہے، تو آپ کے پاس ہو گیا 3 لاکھ کا اسٹاک، 1 لاکھ آپ کو آنا ہے، گویا ہو گیا آپ کے پاس 4 لاکھ۔ 4 لاکھ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہر دکان کا یہی فارمولہ ہے، یعنی ٹوٹل اسٹاک، پھر جو آنا ہے پیسہ اس کو پلس کر لیا جائے، مائنس کر دیا جائے جو ہم کو دینا ہے، اور اسکول ٹو زکوٰۃ، یہ فارمولہ ہے۔ اسی کے تحت زکوٰۃ نکلے گی، 2.5% زکوٰۃ نکلے گی 4 لاکھ کے اوپر جو مثال دیا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب پلاٹ کے بارے میں ایک واضح بات بتا دیجئے۔ دیکھیں پلاٹ جب لوگ لیتے ہیں تو ایک وہ شخص جو پلاٹ لیتے وقت یہ طے کرتا ہے کہ یہ پلاٹ لیا جا رہا ہے تاکہ اس کو بیچا جائے، گویا کہ یہ تاجر ہے، ہر حال میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اس ریٹ کے لحاظ سے جس دن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس دن اس پلاٹ کی ویلو کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا وہ آدمی جس نے لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تجارت مقصد ہی نہیں ہے، اپنے گھر بنانے کے لیے لیا ہے، اپنے بچوں کے گھر بنانے کے لیے لیا ہے، یا 2 پلاٹ لیا ہے کہ ایک پلاٹ میں ہم بیچ لیں گے جب ضرورت پڑے گی اور اس سے اپنا گھر بنا لیں گے، یہ سب اس کی ضرورت ہے، لیتے وقت اس کی تجارت کی نیت نہیں ہے، لہذا اس کے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، پلاٹ لیا ہے، پلاٹ لینے کے بعد نیت تھی کہ بیچنا، نیت یہ تھی کہ گھر بنانا ہے، اب اس کے بعد اس کی نیت ہو گئی کہ نہیں یہ علاقہ اچھا ہے اور اس کو نکال دیں گے، بیچ دیں گے۔ جس دن یہ نیت کرے گا بیچنے کی، اس کے بعد جو وقت آئے گا زکوٰۃ نکالنے کا، اب یہ گویا کہ مال تجارت بن چکا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ لے لیا ہے، پیسہ پھنسا دیا ہے، یہ نیت ہے ریٹ اچھا آیا تو بیچ دیں گے، نہیں اچھا آیا تو گھر کے استعمال میں ہو جائے گا۔ ایسی شکل میں جس میں غریب کا فائدہ ہو وہ فیصلہ کر لے۔ یہ پلاٹ کے بارے میں بات مکمل ہو گئی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جب 2 پلاٹ ہیں اور ایک بنانے کی نیت سے ہے، ایک بیچ کر اسی کو، تو آپ نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور اس کے لیے میں پیسہ رکھے ہوئے ہوں 10 لاکھ روپے کہ اس سے میں اپنے مکان بناؤں گا، دیکھیں جو کیش ہے وہ اس میں پلاٹ کی شکل میں نہیں مانا جائے گا، کیش پر ہر حال میں زکوٰۃ ہوگی، بھلے آپ نے اس پیسے کو رکھا ہے تاکہ میں گھر بناؤں، لہذا اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں وہ اگر پلاٹ کی شکل میں ہوتا تو اس کو بیچ کر گھر بنائیں گے تو اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کے پاس 2 لاکھ روپے تھے اور انہوں نے قرض دے دیا ہے، اب قرض دینے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس 2 لاکھ پر زکوٰۃ کون نکالے گا اور کیسے نکالے گا؟ دیکھیں 2 لاکھ پہ تو زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے۔ کس کو؟ جس نے قرض دیا ہے۔ جب قرض میں کوئی رقم دی جاتی ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ پیسہ واپس آنا ہے تو لہذا یہ میرا مال ہے اور میں نے قرضہ دیا ہے، میں ہی زکوٰۃ نکالوں گا۔ اب ان کا سوال یہ ہے محترم کا کہ
जिसने दे दिया है 2 लाख, अब उसके पास पैसे ही नहीं है ज़कात निकालने के लिए, ठीक है वो नोट कर ले, जब उसके पास पैसा आवे तब ज़कात निकाल दे, लेकिन ये इसका माल है, हर हाल में इसके ऊपर इसको ज़कात देनी है। हाँ, अगर ये मालूम हो जाए कि पैसा डूब जाएगा, डूब गया है और पैसा वापस नहीं आना है, तो फिर इसके ऊपर ज़कात देने की जरूरत नहीं है। और समझ लिया था डूब गया है और कुछ दिन के बाद आ गया, 2-4 साल के बाद जब आ जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात निकाल देगा, सीधी सी बात है। पूछा गया जो जेवर बैंक में रखे हुए हैं गिरवी, उसके ऊपर ज़कात का क्या हुक्म है। देखें, जितना जेवर रखा हुआ है उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 10 लाख का जेवर है और 3 लाख रुपए आपने लोन लिया हुआ है, तो गोया 7 लाख का जेवर आपके पास मौजूद है, 7 लाख के ऊपर आप ज़कात निकालेंगे। और अगर 3 ही लाख का जेवर है और 3 ही लाख लोन लिया हुआ है, तो आप खुद भी ज़कात नहीं निकालेंगे उस जेवर के ऊपर। पूछा गया है कि ज़कात अगर ज्यादा निकाल दें तो क्या हुक्म है। देखें, जो हिसाब से है उतनी ही ज़कात मानी जाएगी, बकिया सदका होगा उसको फर्ज, क्योंकि ज़कात फर्ज है और फर्ज का सवाब नफिल के मुकाबले में अंदाजा नहीं किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर फजर की 2 रकात है, अब आपका मूड अच्छा है, चलो आज 4 रकात पढ़ लिया जाए तो 2 रकात का और ज्यादा सवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी भी वक्त में 2 रकात नमाज पढ़ लें, नफिल नमाज हो जाएगी, लेकिन फर्ज का सवाब नहीं मिल सकता है। पूछा गया है कि अगर सैयद को ज़कात देना चाहें तो क्या शक्ल है। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं। अगर अपने आप को वो सैयद कहता है, एक तो है सैयद लिखा जा रहा है, जब उससे पूछा जाता है तो कहता है भैया मालूम नहीं हम सैयद हैं, हमारे पास तो कोई शजरा वजरा है नहीं, फिर ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। लेकिन एक आदमी सीना ठोक के कहता भाई मैं तो सैयद हूँ, ज्यादा ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब ऐसे लोग अगर परेशान हैं और वो कहें कि मेरी मदद करो, तो फिर कैसे मदद की जाए। क्या आपके पास सिर्फ ज़कात ही 1.5% तो ज़कात दी जाती है, 97.5 रुपया तो हम अपनी जेब में रखते हैं ना। अगर मालूम हो जाए कि सैयद है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अल्लाह के रसूल के खानदान के किसी शख्स को अपने घर की तरह मदद करें, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको 97.5 में से उसकी मदद करें। लेकिन अगर वो सैयद अपने आप को मानता है तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। पूछा गया मेरे पास 2 गाड़ी है, मैंने लोन लेकर के लिया था, अब लोन क्लियर हो गया है और वही दोनों गाड़ी से मतलब उसी से हम कमाते खाते हैं, तो दोनों गाड़ी की जो वैल्यू है उसके ऊपर ज़कात होगी कि नहीं। ये बात याद रखें, ये रेंट कार या इस किस्म के जितने बिजनेस होते हैं, जो गाड़ी रोड पर चल रही है उसके ऊपर कभी ज़कात नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी आग में 5 ट्रक है, 4 ट्रक 10 ट्रक जो भी है, ट्रक की वैल्यू पर ज़कात नहीं होगी। ट्रक से जो आमदनी हो रही है, साल भर में बैठ करके देखा जाएगा कि 10 ट्रक से कितनी आमदनी हुई और आमदनी होने के बाद खर्चा पानी कितना हुआ, अब मेरे हाथ में बचा कितना है। अब जो बचा हुआ है, अगर वो इतना बचा हुआ है कि जिसमें 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदा जा सकता है और बकिया उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में उस बची हुई रकम पर अगर वो साहिब निसाब बनेगा तो उसके ऊपर ज़कात देगा, वरना वो गाड़ी जो रोड पे चल रही है उसकी वैल्यू पर ज़कात नहीं होती है। पूछा गया कि कर्ज के ऊपर ज़कात का क्या हुक्म। अभी बताया मैंने कि कर्ज जो है जिसको दिया है, अगर यकीन है कि पैसा वापस आएगा तो ज़कात हम ही को देनी है जिसने कर्ज दिया है, और अगर यकीन कामिल है कि पैसा डूब गया है तो ज़कात देने की जरूरत नहीं है। पूछा गया हमारी फैक्ट्री है, प्लास्टिक के हम सामान बनाते हैं, तो फैक्ट्री के ऊपर ज़कात कैसे निकालें। कोई भी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में जितनी मशीन लगी हुई है उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं हो, चाहे करोड़ों की मशीन हो। फैक्ट्री वाला जो भी सामान बनाता है ये देख ले कि जिस दिन वो ज़कात निकाल रहा है उस दिन उसके पास माल बना हुआ कितना है, यानी उसके पास स्टॉक पता चला 10 लाख रुपए का माल बना रखा हुआ है, तो इसके पास 10 लाख रुपए हैं। नंबर 1, उस माल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर के आया है जो 2 लाख का रखा है, तो वो इसके पास 12 लाख रुपए रखे हुए हैं। पता चला कि कुछ लोग सामान लेकर के गए हैं, भी पैसा नहीं दिए, 2 लाख रुपए वो आना है, तो 14 लाख रुपए इसके पास हो गए। और पता चला कि इसको 4 लाख रुपए वहां देना है जहां से रॉ मटेरियल उठाया है, तो 14 में से 4 निकल गए तो फिर 10 लाख बचे, तो 10 लाख के ऊपर ज़कात भी देगा। तो गोया सबसे पहले ये देखे कि माल कितना बना रखा है, नंबर 1। नंबर 2 ये देखे कि रॉ मटेरियल कितना रखा है, उसको जोड़े, उसकी वैल्यू जोड़ ले।
जैसे मैंने बताया 10 लाख का माल बना है, 2 लाख मटेरियल रखा हुआ है, 12 लाख हो गए। 2 लाख का लोग माल लेकर के गए हैं, 14 लाख रुपए हो गए। 4 लाख रुपए इसको पे करना है, घटा लीजिए, 10 लाख बचे, 10 लाख के ऊपर इसको ज़कात देनी है। सारी फैक्ट्री का यही नज्म है। पूछा गया है कि मैं साहिब निसाब हूं, मेरे पास 7.5 तोला सोना है, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है ज़कात देने के लिए लॉकडाउन की वजह से, तो क्या मैं रमजान के बाद ज़कात दे सकती हूँ? भाई देखें, एक आदमी से आपने वादा किया कि मैं आपका कर्जा रमजान में दूंगा, रमजान खत्म हो गया तो कर्जा तो नहीं खत्म हुआ ना, आप आगे आपको देना है कर्जा। तो अगर रमजान में आपके पास कैश पैसे नहीं थे, तकवे का तो तकाजा ये था कि गोल्ड बेचा जाता और ज़कात दी जाती, देखा जाए तो, क्योंकि गोल्ड इज कैश, गोल्ड कैश है। ज्यादा चलो वो नहीं किया, तो आप नोट कर लें कि मेरे ऊपर ज़कात ड्यू है, जब आपके पास पैसा आ जाए आप ज़कात अदा कर दें। रमजान में ही ज़कात अदा करना कहीं कुरान हदीस में नहीं लिखा हुआ है। पूछा गया मौलाना साहब, हज के बारे में ये सुनाई पड़ रहा है कि अब इस साल हज नहीं होगा, तो जिन लोगों ने हज की कीमतें, हज के पैसे जमा कर रखे हैं, उस जमा पैसे पर ज़कात होगी या नहीं? उस पर ज़कात होगी। वो पैसे आप वापस लेना चाहें वापस ले लीजिए, लेकिन अगले साल तक क्या जरूरी है कि आप हज के लिए जिंदा रहें? लिहाजा अब वो पैसे आपके पास कैश हैं और उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है। पूछा गया है कि बात चीजें घर में जेवरात माएँ जो है वो बच्चों के नाम बच्चियों के नाम रख देती हैं, इसके ऊपर कौन ज़कात अदा करेगा? अगर माँ ये समझती है कि ये बच्चे का है और बच्चा ही इसका मालिक है, तब तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर महज बच्चे के नाम पर है, मालिक माँ है, कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, वैसे तो वो उसको नहीं खर्चा करती, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो वो समझती है कि मैं इसको खर्चा कर सकती हूँ, इसका मतलब माँ ही मालिक है, ज्यादा माँ उसके ऊपर ज़कात अदा करेगी। और अगर वो समझती है कि मैं किसी भी शक्ल में इसको नहीं खर्चा कर सकती हूँ, तो फिर ऐसी शक्ल में उसके ऊपर ज़कात नहीं देगी। पूछा गया कि किस्त पर लोन लिया गया है, मिसाल तौर पर घर बनाया है, 15 साल के लिए लोन ले लिया है, अब ज़कात निकालना है तो वो लोन को माइनस करेगा या नहीं? एक साल में 1,20,000 रुपए वो किस्त भरता है। इसमें देखिए 2 राय है। एक राय ये है, आपके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं और 1,20,000 रुपए आपको किस्त देनी है एक साल की, तो एक साल की 1,20,000 रुपए माइनस कर दीजिए और 8,80,000 पे ज़कात निकाल दीजिए, एक राय। दूसरी राय ये है कि किस्त में जो लोन लिया गया है वो माइनस ही नहीं किया जाएगा, बल्कि टोटल पे आपको ज़कात देनी होगी। ये दोनों राय हैं, लेकिन इसमें जो महीने यानी साल भर की जो किस्त है वो माइनस करके वो बात ज्यादा माकूल है। इसका आखिरी सवाल पूछा गया है कि मौलाना साहब ये चांदी और सोने में अब बहुत बड़ा रेट का फर्क हो गया है, फिर भी लोग इसी बात पर फतवा दे रहे हैं कि साहब अगर किसी के पास मिसाल तौर पर 52.5 तोला चांदी का मतलब ये है आज के रेट से 41 रुपए अगर लगाए जाएंगे तकरीबन 26,000 रुपए ज्यादा होते हैं। अगर किसी के पास 26,000 रुपए कैश हैं तो वो साहिब निसाब है, अब उसको ज़कात देनी है। लोग कहते हैं कि अगर चांदी को निसाब माना जाएगा तो गरीबों का फायदा है। बहरहाल फतवा तो इसी पर है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मसला इज्तिहादी होना चाहिए, इस पर इज्तिहाद बैठ के करना चाहिए कि सोने को मेयार बनाया जाए। आप देखें 5 ऊंट की कीमत, 5 ऊंट जब हो तो कोई ज़कात देगा, 40 बकरी हो तो ज़कात देगा, गालबन 25 गाय या भैंस हो तो ज़कात देगा। ये इन सब की आप वैल्यू निकालें। आज भी अगर 5 ऊंट खरीदना चाहें तो एक ऊंट अच्छा ऊंट जो है वो 40 से 50 हजार का होता है, तो 2.5 लाख रुपए हो गए। 40 बकरी आप खरीदना चाहें, 40 बकरी, अगर 40 बकरी की कीमत आप 8,000 रुपए लगा लें तो 8 चौक 32, 3,20,000 रुपए हो गए। इसी तरह अगर 25 भैंस की कीमत लगा लें, गाय की कीमत लगा लें, तो भी सब तकरीबन समझ जाइए कि वो 7-7.5 तोले सोने के बराबर हैं, सिवाय चांदी के। चांदी 7.5-52 तोला जो है वो बहुत कम हो गई है सोने के मुकाबले में। लिहाजा फतवा तो मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं उस मुकाम पे नहीं हूं कि मैं फतवा दूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो चांदी को मेयार बनाया जा रहा है ये सही नहीं मालूम होता है। और इस पर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुझे याद आता है कि इस पर उन्होंने बहस की है कि दुनिया में हमेशा सोना ही मेयार ठहरता है, करेंसी हमेशा जो नोट कागज लेकर हम फिरते हैं
اس کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ سونا ہی دیا جاتا ہے، سونا ہی جو ہے اس کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا اس پر علماء کو بیٹھ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے. اور بہرحال یہ ایک موضوع ہے کہ جس پر سیمینار ہو اور بیٹھ. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر چاندی کو مانا جائے گا تو غریبوں کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کا فائدہ ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ بہت جلدی صاحب نصاب ہو گیا ہے. ایک آدمی غریب آدمی 52.5 تولہ چاندی رکھے ہے یا 26,000 روپے رکھے ہوئے تو صاحب نصاب ہو گیا. اب وہ غریب کی مدد نہیں کی جا سکتی ہے تو غریب کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے. اگر غریب کا فائدہ ہو رہا ہے تو غریب کا نقصان بھی ہو رہا ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر بیٹھ کر گفتگو ہونی چاہیے. یہ اس کا پارٹ 1 ختم ہوا. انشاءاللہ پارٹ 2 شروع کرتے ہیں.